Hey everyone, welcome to today's video. I am well and I hope all of you are doing very well. Today's video is for those who are investors in share markets and wants to earn tax-free income from capital market. So this video is very much relevant. Stay till the end. You will have an idea when to get the tax-free income from the share market. So without taking much time, I just start my class. Today's video is on section 115 QA, tax on distributed income. This video pertains to buyback of shares. Buyback of shares. This company can reward their shareholders. Company can reward their shareholders either by paying dividend or buyback of share. Buyback of shares. What do you mean by buyback of shares? Buyback of shares means companies buying its shares back from the shareholder. Company issued share through ESOP, through IPOs, through bonus issue. Company issue shares to the shareholders, and company buy back these shares from the shareholder. This is called buyback of shares. Normally unlisted company, if you pay dividend, the dividend is taxable in the hands of shareholder. Dividend is taxable in the hands of shareholder. Normally unlisted company use this provision of buyback of shares. Normally unlisted company are using this route to reward their shareholders, but the government noticed that the same thing is followed by the listed company also. So from this provision 115 QA earlier was applicable only on the unlisted company, but now 115 QA is applicable on both listed and unlisted company with effect from 5th July 2019. 5th July 2019. That is, with effect from 5th July 2019, the buyback of provisions applicable for both 115 QA is applicable for both listed and unlisted companies, for both listed and unlisted shares. Pre-5/7 2019, earlier to 5th July 2019, listed company for buyback of share by listed company, section 46A was applicable. Section 46A was applicable, and as per section 46A, the shareholders are required to pay capital gain tax based on their period of holding. And listed company pay capital gain tax, and for unlisted company 115 QA was applicable. In case of unlisted company, in case of unlisted shares, domestic companies are required to pay buyback of tax, required to pay tax on distributed income, which was applied for buyback of shares, but with effect from 5th July 2019, with effect from post 5th July 2019, this 115 QA is applicable on both listed shares and unlisted shares. Listed shares and unlisted shares. What are the conditions and other things? We will discuss all the things in detail in our next slide. What are the conditions for buyback of shares? What are the conditions? Known as tax on distributed income. Tax on distributed income. Tax on distributed income. 115 QA. 115 QA. 115 QA. Section 115 QA. It is applicable on domestic company. It is applicable on domestic company. In addition to normal tax. In addition to normal tax. In addition to normal tax, normal income tax which was charged on the domestic company. In addition to normal tax, domestic companies are required to pay. Domestic companies
are required to pay. Domestic companies are required to pay amount of distributed income. Amount of distributed income by the company to shareholder through buyback of shares. And how much amount of tax is required to pay in addition of the normal tax? How much amount of tax is required to be paid by the domestic companies? The tax rate is 20% on distributed income. 20% on distributed income. Tax rate is 20% on distributed income plus surcharge of 12%. 12% surcharge plus 4% cess. Again, I am dealing with this. What are the conditions of 115 QA? This 115 QA is applicable on domestic company only. Domestic company is required to pay, in addition to normal tax, required to pay the tax on distributed income by the company to shareholder through the buyback of share. Tax on amount of distributed income by the company to shareholder through buyback of share. And what is the tax rate? Tax rate is 20% on distributed income plus 12% surcharge plus 4% cess. 12% surcharge plus 4% cess. Tax rate, again, I will discuss in the next slide. Tax rate. What are the tax rate? टैक्स रेट देखिए, टैक्स रेट कितना होगा? 20% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम. 20% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम. जो पैसा आप बाईबैक के रूप में शेयर होल्डर को दे रहे हो उसके ऊपर 20%, और उस 20% के ऊपर क्या होगा? 12% सरचार्ज. 12% सरचार्ज और फिर आपका 4% सेस. मैं यदि आपको टोटल बताऊं तो क्या होगा बताना तो 20, इसका 112%, इसका 104%. टोटल सरचार्ज इज 23.296%. टोटल बाईबैक टैक्स इज 23.296%. 23.296%. समझ में आया आप लोगों को? तो टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ता है? ये टैक्स कौन पे करेगा? दिस टैक्स इज बीइंग पेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी. दिस टैक्स इज बीइंग पेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी. सिंस द टैक्स इज बीइंग पेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी, इट इज टैक्स फ्री in the hands of shareholder. It is tax free in the hands of shareholder. See, income arising on account of buyback of shares. Income section 1034A. Section 1034A. Since tax is paid by the domestic company on the distributed income distributed by the company to its shareholder in case of buyback of shares, so the income which arises in the hands of shareholder is tax free. Since tax is being paid by the company, the income arises in the hands of shareholder is the tax free. कोई भी एक इनकम एक बार ही टैक्स हो सकता है. एक बार यदि टैक्स पे कर दिया गया तो वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा. इस केस में जब डोमेस्टिक कंपनी 115Q के अंदर टैक्स पे कर दे रही है तो वो इनकम जो आपको मिल रहा है वो आपका टैक्स फ्री इनकम होगा अंडर सेक्शन 1034A. इनकम arising एक मिनट. Income arising on account of buyback of share
covered under section 115 QA is exempt थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम exempt in the hands of shareholder। तो ये मान के चलिए कि आप यदि इन्वेस्टर हो शेयर मार्केट के, आप यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ये बाईबैक कौन कंपनी इशू करता है? बाईबैक नॉर्मली जो आईटी सेक्टर कंपनी इन्फोसिस है, टीसीएस है, मॉइल है, माने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सभी कंपनी आपके बाईबैक अधिक इशू करते हैं। इसके अलावा भी बाईबैक इशू किया जाता है। जब कोई कंपनी बाईबैक इशू करता है तो ऐसा फील होता है कि कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसको अपने कंपनी पर अधिक कॉन्फिडेंस है, इस कारण से वो अपने शेयर को बाईबैक कर रहा है और अधिक से अधिक एक्यूमुलेट करना चाहता है शेयर से। प्रमोटर्स अपने हैंड में अधिक से अधिक शेयर्स रखना चाहते हैं, इसीलिए वो बाईबैक के ऑप्शन में जा रहे हैं। तो द प्रमोटर्स बाईबैक ऑफ से इंडिकेट्स दैट द प्रमोटर्स आर शोइंग कॉन्फिडेंस ऑन द कंपनी, ऑन इट्स ओन कंपनी। और बाईबैक अब जिस प्राइस में नॉर्मली जिस प्राइस में मार्केट में ट्रेड हो रहा है, बाईबैक ऑफ शेयर उसके अपर प्राइस में होता है। सपोज कीजिए यदि कोई शेयर मार्केट में अभी 300 रुपीज का है तो कंपनी जब बाईबैक पर जाएगी तो वो 350 पर, 340 पर, 400 पर ऐसे प्राइस पर जाएगी। जो मैं एक नेक्स्ट डेट को कोई एक डेट फिक्स होगा, उस डेट को मैं बाईबैक करूंगा। और बाईबैक के लिए आप लोग अप्लाई कीजिए, शेयर होल्डर बाईबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, थ्रू मेल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बाईबैक के लिए अप्लाई कीजिए। बाईबैक के अप्लाई करने के बाद यदि आपका बाईबैक का ऑप्शन मिलता है तो आपको जैसे ही बाईबैक का ऑप्शन मिलता है, आप यदि बाईबैक में अपने शेयर्स को सेल कर पाते हो तो जो भी आपको रिवेन्यू मिलेगा, जो भी आपको इनकम होगा, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। ये टैक्स प्लानिंग के पर्पज से बहुत ही रिलेवेंट है। मैं खुद शेयर्स को होल्ड करता हूं जब तक वो बाईबैक इशू नहीं करे। बहुत सारे कंपनी बाईबैक करते हैं, कोल इंडिया बाईबैक किए थे, मॉइल बाईबैक किया था, ओएनजीसी बाईबैक किए थे, आईटीसी, विप्रो, इन्फोसिस। सबसे जो रिसेंट बाईबैक है वो आपका टीसीएस का था, 4500 में बाईबैक किया गया था और उसका प्राइस था मार्केट में 3500। इफ एनीवन, यदि किसी के पास यदि वो टीसीएस का शेयर्स यदि रिसेंटली वो बाईबैक अनाउंसमेंट के बाद भी बाई करता है, फिर भी आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट पर शेयर्स का था। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं अब एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू मैं इसको डील करना चाहता हूं ताकि आप लोग की ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए। Before I go for example, we must see what do you mean by distributed income, because we are using the term here tax on distributed income. So we must understand what is distributed income. In normal term, the income which is distributed by the company on buyback of shares is called distributed income. Though we just see here what do you mean by this. Distributed income means consideration paid at the time of buyback of shares, which is reduced by the amount received at the time of issue of shares. तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होता है? जो भी पैसा आपने पे किया था बाईबैक ऑफ शेयर्स के समय में और जो पैसा आपने रिसीव किया था जब आप शेयर इशू किए थे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम माना जाएगा। और उसी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर टैक्स आपका चार्ज होगा 23.296%, 20% नॉर्मल टैक्स, 12% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, व्हिच वाज डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स।
तो आप समझ गए। अब इसमें क्या हुआ, कुछ बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, एमलगेमेशन होगा उस समय, उस केस में इशू प्राइस क्या होगा, मर्जर केस में क्या होगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इशू एट डिस्काउंट प्रीमियम, सो मेनी थिंग्स। उस सब केस में जो अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू प्राइस क्या होगा, वो आपका उसको कैसे डील करेंगे। इसके लिए अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन ए रूल, as prescribed under rule 40 BBB 40BB। तो आप लोग को यदि जानना हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होता है तो एक बार रूल 40BB को भी रीड कर लीजिएगा। हम 40BB को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता, कुछ अधिक नहीं है। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जो पैसा आप पे कर रहे हो बाईबैक के टाइम में, और जो पैसा आपने लिया था एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, उस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। और 115 QA उसी के ऊपर में टैक्स पे करता है, 115 QA उसी के ऊपर में टैक्स पे करता है एट द रेट ऑफ 23.296%। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल में डील करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए लिमिटेड, ये आर्बिट्रली मैं एग्जाम्पल डील कर रहा हूं। ए लिमिटेड परचेजेज its own shares, the total amount distributed by A Limited, total amount utilized by A Limited for buyback of 20,000 shares at the rate of ₹100। देखिए 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, कंपनी ने अपने 20, सपोज कीजिए कंपनी के बहुत सारे शेयर्स मार्केट में, फॉर एग्जांपल लैक्स ऑफ शेयर्स है, कंपनी क्या करती है उस लैक्स ऑफ शेयर्स में से 20,000 शेयर्स बायबैक कर रही है। रिसेंटली जो TCS का बायबैक हुआ था वो 1% का हुआ था, ऐसे ही बायबैक 1%, जितने भी शेयर्स हैं उसके 1%, 0.5% ऐसे अमाउंट्स के बायबैक होते हैं। तो ए लिमिटेड क्या कर रही है, ए लिमिटेड 20,000 शेयर्स को ₹100 में बायबैक कर रही है, ठीक है। These shares were issued in 2002 and 2003 and during financial year 0203 at the rate of ₹15 per share, देखिए 15 रुपए में शेयर आपने इशू किया था 2002-03 में, और ₹100 में आप शेयर को बाईबैक कर रहे हो। मिस्टर झा इज वन ऑफ द शेयर होल्डर holding 1,000 shares purchased in 2005-06 at the rate of ₹50 per share, ₹50 per share। Mr. Jha receives ₹1 lakh on buyback of share, देखिए कंप्यूटेशन करते हैं। मैंने क्या कहा, ए लिमिटेड ने क्या किया, अपने शेयर्स को बाईबैक कर रहे हैं, 20,000 शेयर्स को बाईबैक कर रहे हैं। तो मैं यदि आपको ये बताऊं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कितना होगा, बताइए व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, कितना रुपया बाईबैक पर इशू कर रहे हो। कंपनी इज इशूइंग 20,000 into 100 इक्वल टू 20 lakhs। 20 lakhs
लेस क्या था बताइए तो, लेस क्या था जब उसका इशू प्राइस कितना था, इशू प्राइस कितना रुपए रिसीव किए थे, अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर से, इशू प्राइस कितने थे, इशू प्राइस था 15 रुपीज पर शेयर, तो ये आपका 20,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 15, 3 लाख 3 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो हाउ मच इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इज 17 लाख रुपीज, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इज 17 लाख रुपीज। इसके ऊपर 115 QA में कितना का टैक्स बैठेगा, 115 QA में टैक्स बैठेगा 20% ऑफ 17 लाख। जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर में 12% सरचार्ज, इसके ऊपर में जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर में आपका 12% सरचार्ज, और फिर उसके ऊपर में 4% सेस। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 115 QA में। इनके सब कंपनी ये जो ए लिमिटेड है, दिस ए लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे इन एडिशन ऑफ द नॉर्मल टैक्स, जो नॉर्मल टैक्स वो पे करते हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट में जो नॉर्मल टैक्स पे करेंगे PGBP के अंदर में, उसके अलावे ये आपका 115 QA में टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना होगा 23.296%, 23.296%। 20% आपका डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर में, 12% सरचार्ज ऑन टैक्स एंड 4% टोटल ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज का 4%। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। टोटल 23.296% है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर मेरे कमेंट में दीजिएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। और मिस्टर झा के हैंड में क्या हुआ, जो मिस्टर झा के हैंड में देखा जाए तो 100 रुपीज में उन्होंने शेयर को बाईबैक में सेल कर दिया, उन्होंने बाई किया था 50 रुपीज में, तो 50 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मिस्टर झा के लिए क्या होगा, जो 50 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट है वो आपका एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034A में। तो अमाउंट रिसीव्ड प्रॉफिट अराइजेज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर झा is exempt in the hands of as per section 1034A, as per section 1034A, since the tax has been paid or by the domestic company at the rate of 23.296%. I think this point is clear to all of you. Next matter. अब क्या हुआ, कंपनी ने जो डोमेस्टिक कंपनी ने जो आपका डिस्ट्रीब्यूट इनकम के ऊपर में जो टैक्स काटा है, कंपनी ने जो डिस्ट्रीब्यूट इनकम के ऊपर में जो टैक्स पे करेगा, काटा है भाई, सॉरी मैंने आपको काटा है कह दिया था, जो टैक्स पे करेगा वो टैक्स कितने दिन के अंदर में पे करना पड़ेगा। कंपनी और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 QA, is required to pay tax under 115 QA within 14 days, within 14 days from the date of payment of any consideration to the shareholders. Domestic company is required to pay tax to the central government within 14 days from the date of payment of consideration to the shareholder. यदि नहीं पे करते हो तब क्या होगा, यदि डोमेस्टिक कंपनी नहीं पे करते, गवर्नमेंट को जमा नहीं करते, तब क्या होगा, देन 115 QB इज एप्लीकेबल एंड एज पर 115 QB इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1%, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच द टैक्स अंडर सेक्शन 115 QA is required to be paid to the government and in which the tax was actually paid. The 115 QB simple interest at the rate of 1% per month or part of the month starts from कब से स्टार्ट होगा बताइए तो, कब से स्टार्ट होगा, कब पे करना पड़ेगा टैक्स, 14 डेज के अंदर में टैक्स पे करना पड़ता है। जब आपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया था उसके 14 डेज के अंदर में आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच टैक्स वाज पेएबल अंडर सेक्शन 115 QA and ends with when tax was actually paid,
पेड। समझ गए। तो यदि कोई कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी यदि 115 क्यूए में टैक्स नहीं पे करता है तो उनके ऊपर 115 क्यू भी एप्लीकेबल हो जाएगा और डोमेस्टिक कंपनी को पे करना पड़ेगा टैक्स along with the interest at the rate of 1% per month or part of the month. I think this point is clear. Then thank you friends, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप काइंडली मेल कर सकते हैं amjaclasses.ca.cma@gmail.com। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, मेरे व्यूअर्स को समझ में आया होगा, और यह वीडियो बहुत ही रिलीवेंट है। कोई भी यदि आपके पास एक लॉन्ग टर्म, एक बहुत दिनों से कोई भी शेयर से स्क्रिप्ट पड़ा हुआ हो, बहुत अधिक आपको गेन हो रहा हो, और कंपनी ने अचानक डिक्लेयर कर दिया कि बाईबैक में यदि कंपनी चला गया, तो आपको बेटर रहेगा कि आप बाईबैक में आप ऑप्शन को अप्लाई कर ले, क्योंकि जैसे आप बाईबैक में उस ऑप्शन को अप्लाई कर लोगे, जो भी आपका गेन होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा, और पूरी तरीके से टैक्स उसके ऊपर आपका सेविंग हो जाएगा अंडर सेक्शन 1034A 10 सबसेक्शन 34A। तो 1034A में आपको छूट मिल जाएगा। दिस वीडियो आप मैंने खुद ही अप्लाई किया, मैंने टीसीएस में अप्लाई किया था, मैंने मॉयल में अप्लाई किया था। मेरे पास जो भी शेयर्स रहता है, मैं देखता हूं कि जैसे ही वो बाईबैक कोई कंपनी अनाउंस करे तो बाईबैक में उस शेयर्स को निकाल दो। आप यदि बाईबैक में शेयर्स को निकाल दोगे तो वो इनकम आपके हैंड में टैक्स फ्री हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स।